ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨ ਜਾਣ, ਸਾਰ ਨ ਜਾਣ ਤੇਰੀ। ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਹੋਵੈ ਸਿਵ ਦੁਖ ਸਾਮਦੇ, ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਢਟਿਆ। ਤੁਧ ਡਿਠੈ ਸੱਚੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕਟਿਆ। ਸੁਕਾਹੋ ਢਾਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ, ਅਹਨਿ ਸੁਸਾਜ ਸੁਭਾਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਆ ਗੁਰੂ ਕੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇਕਦਮੀ, ਮੋਹਲਤ ਮੋਤ ਨ ਡਾਣਾ। ਨਾਨਕ ਬਿਨਵੈ ਤਿਸੈ ਸਰੇਵੋ, ਜਾਨ ਕੇ ਜੀ ਪੁਰਾਣਾ। ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇਕਦਮੀ, ਮੋਹਲਤ ਮੋਹਤ ਨ ਜਾਣਾ। ਨਾਨਕ ਬਿਨਵੈ ਤਿਸੈ ਸਰੇਵੋ, ਜਾਨ ਕੇ ਜੀ ਪੁਰਾਣਾ। ਅੰਧੇ ਜੀਵਨਾ ਵਿਚਾਰ, ਦੇਖੋ ਕੀਤੇ ਕੇ ਦਿਨਾ। ਰਾਉ ਸਾਸ ਮਾਸ ਸਾਜਿਓ ਤੁਮਾਰਾ, ਤੂੰ ਮੈਂ ਖਰਾਬਿਆਰਾ। ਨਾਨਕ ਸਾਇਰ ਏਵ ਕਹਿਤ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਰਵਦਗਾਰਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਸੈ ਨ ਦੇਹੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਕਿਆ ਕੋ ਕੱਢੈ ਗਹਿਣਾ। ਨਾਨਕ ਬਿਨਵੈ ਸੋ ਕਿਛ ਪਾਈਐ, ਪੁਰਬ ਲਿਖੀ ਕਾ ਲੈਣਾ। ਨਾਮ ਖਸਮ ਕਾ ਚਿਤ ਨ ਕੀਆ, ਕਪਟੇ ਕਪਟ ਕਮਾਣਾ। ਜਾਮ ਦੁਆਰ ਜਾਂ ਪਕੜ ਚਲਾਇਆ, ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਪਛਤਾਣਾ। ਜਬ ਲਗ ਦੁਨੀਆ ਰਹੀਐ, ਨਾਨਕ ਕਿਸ ਸੁਣੀਐ ਕਿਸ ਕਹੀਐ। ਭਾਲ ਰਹੇ ਹਮ ਰਹਿ ਨ ਪਾਇਆ, ਜੀਵ ਤਿਆ ਮਰ ਰਹੀਐ। ਜਬ ਲਗ ਦੁਨੀਆ ਰਹੀਐ, ਨਾਨਕ ਕਿਸ ਸੁਣੀਐ ਕਿਸ ਕਹੀਐ। ਭਾਲ ਰਹੇ ਹਮ ਰਹਿ ਨ ਪਾਇਆ, ਜੀਵ ਤਿਆ ਮਰ ਰਹੀਐ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ, ਅਜੂਨੀ
सैभं गुर प्रसाद। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਵਿਖੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸਤਸੰਗੀਓ, ਅਥਵਾ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਜਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਆਓ ਇਕਾਗਰਚਿਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਰਵਪ੍ਰਥਮ ਪਿਆਰ ਸਤ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿਆਣੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਨਜ਼ਾਰਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਜ਼ਾਰਾ ਇੱਕ, ਨਜ਼ਰੀਆ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਸਲਨ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਾ, ਉਸੇ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵਰਣਨ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਦ੍ਰਿਸ਼ ਇੱਕ ਹੈ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਨਜ਼ਾਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਣ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇਣਾ, ਨਜ਼ਾਰਾ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਦੁਨੀਆਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਇੱਕ ਜੈਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਕੀ ਦੇਖੀ ਬਾਤ, ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਇਹ ਕੀ ਬੁਝਾਰਤ ਹੋਈ ਬਈ? ਹੁਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦ੍ਰਿਸ਼ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਇੱਕ ਜੈਸਾ ਹੈ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵੀ ਇੱਕ ਜੈਸਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਮੈਂ ਆਪ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਬਚਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਬਚਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇੱਕਦਮੀ ਮੋਹਲਤ ਮੋਹਤ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਦਮ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਮੌਤ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਆ ਜਾਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਦਮ ਆਵੇ ਤੇ ਆਦਮੀ, ਤੇ ਜੇ ਅਗਲਾ ਦਮ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਮਿੱਟੀ, ਫਿਰ ਤੇ ਮੁਰਦਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਲਾਸ਼। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਨਜ਼ਾਰਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਨਜ਼ਾਰਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਏ ਮੌਤ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਤਬਾਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੌਤ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਵਿਛੋੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੌਤ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਬਰਬਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੌਤ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਮਰ ਗਏ ਹਾਂ, ਲੁੱਟੇ ਪੱਟੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਰਿਹਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਨਾ, ਸਭ ਦੁਨੀਆਦਾਰਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਵੱਖਰਾ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਮੌਤ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਨਾ, ਮੌਤ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਘਟਨਾ ਵਾਂਗ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜੀਵਨ ਉਵੇਂ ਮੌਤ, ਜਿਵੇਂ ਜਨਮ ਉਵੇਂ ਹੀ ਮੌਤ। ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੌਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ਾਰ ਜ਼ਾਰ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਕਲਪਨੇ ਆ, ਪਿੱਟਦੇ ਆ, ਕੁਰਲਾਉਣੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਵਿਛੋੜਾ ਹੈ, ਮੌਤ ਤਬਾਹੀ ਹੈ, ਮੌਤ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਮੌਤ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਮੌਤ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਨਾ, ਸਾਡਾ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਸ ਇਹ ਹੀ ਹੈ।
आओ हुण जरा ना तुहानूं महाराज गुरु नानक का नज़रिया दिखावा। इसलिए मैनूं आखना पैगा साडा सब का नज़रिया एक जैसा, जे वखरा है तो सिर्फ गुरु नानक का। रोज़ सोहिला साहिब का पाठ करते हैं ना असीं, रोज़ हुक्म है सिख पंजां बाणियां का पाठ करे तो रात को सौण लग्या सोहिला साहिब की बाणी का पाठ करके समय, हुक्म है। मैं बेनती करांगा जरा कृपा करके ना एकाग्रता नाल ध्यान नाल पाठ करना। साडा सुभाव ही बन गया बई बस फटाफट ना पाठ मुका दईए, सुभाव ही बन गया क्योंकि फटाफट मुकाउण वाल ख्याल हुंदा है, इसलिए समझ कख नहीं आता। सिर्फ मंत्र वांग असीं रिपीट कर रहे हैं, मंत्र वांग। हाँ, इस तरह पाठ करना जिस तो सुनने वाले नूं पढ़न वाले नूं कख समझ ना आवे, गुस्ताखी लिखना कोई बहुता फायदा नहीं देता। सिर्फ एवं एक मानसिक तसली होती है मैं पाठ कर लिया है, बहुता फायदा नहीं होता। क्योंकि सतगुरु ने आख्या सी बाणी ते विचार विचार के पढ़। सतगुरु महाराज गुरु अमरदास गुरु आखदे ने सतगुरु नो सब को देखदा जेता जगत संसार। गुरु नू आके वेख लिया है, गुरु दे दर्शन कर लए ने, गुरु दे चरणों में आके मत्था टेक लिया, ये तो सारे ही कर लेंदे ने। सतगुरु नो सब को देखदा जेता जगत संसार, पर डिठे मुक्त ना होवई जिचर शब्द ना करे विचार। शब्द का विचार तो करना भाई, जो पढ़ रहे हैं, जो गुरु ने आख्या पढ़, विचार तो सही। चलो मैं बेनती कर रहा सा, सोहिला साहिब दी बाणी दा पहला शब्द, आखिरी पंक्तियां। गुरु कहते ने संबत साहा लिखिया मिल कर पावो तेल। संबत साहा लिखिया, गुरु कहते ने संमत भाव साल लिखिया हुआ है। साल संबत समा, ए पर्टिकुलर टाइम एंड डेट हर बंदे का लिखिया हुआ है। चलो ये गल मैं पहलों दस देना, सतगुरु इत्थे मौत के बारे में जिक्र कर रहे हैं बई हर बंदे का मौत का समा नीयत है। इन्हां पंक्तियों में मौत की गल हो रही है, पर गुरु पता है अगे लफज की आखदे ने, साहा। हुण तुसीं पंजाबी समझण वाले इन्हां ते जाणदे होवोगे ना बई लफज साहा का मतलब की हुंदा है। साहा, साहा मौत वास्ते तो कदे भी नहीं वरतीदा। साहा एक खास वेले लई वरतिया जाता है। उदाहरण वजों पंजाब विच अज भी इस तरह ही आखदे ने, किसी बच्चे का विआह रखिया होवे ना तो आखदे ने भाई साहा रखिया है। विआह का काम है, साहे का काम है। जेड़ी चिट्ठी भेजी जाती है बई विआह का दिन नीयत कर लिया, उसनूं आम करके साहे चिट्ठी आखदे ने। साहे की चिट्ठी, विआह की चिट्ठी। तो गुरु आखदे पए ने संबत साहा लिखिया। महाराज कहते ने भोलियो मेरी मौत का दिन नहीं, ये तो मेरे विआह का दिन है, मेरे मिलाप का दिन है। की कही जाते हो, मौत का दिन है? नहीं, ये तो मिलाप का दिन है। तो फिर अगली गल, मिल कर पावो तेल। पंजाब का एक पुराना रिवाज सी बई जिस नौजवान बच्ची का विआह होना हुंदा सी ना, पिंड दियां सारियां इस्त्रियां रल के इकट्ठियां होके एक दिन उसके सिर विच नाले तेल चसदियां सन ते नाले गीत गाउंदियां सन, गाउण कढ़दियां सन। ते उन्हां गीतां विच की हुंदा सी, आसीस हुंदी सी, जा तेरी सौरे घर बण आवे, जा तू शुभ गुणा की मालक होवे, जा तू सदा सुहागण होवे, तेरी बण आवे।
गुरु नानक आखदे ने मेरा भी साहे दा दिन नियत हो गया है, ऐ गुरमुख इस्त्रियो होवो इकट्ठियां, मेरे सिर विच तेल चसो ते मैनू आसीस दिओ। कादी देहो सज्जन आसीसड़ियां ज्यों होवै साहिब स्यों मेल। इत्थे किते मौत का जिक्र हो रहा है। हाँ, गल मौत की कर रहा है। कमाल हो गई, नजरिए विच एडा फर्क हुंदा है। मैं फिर दोहराना, दुनिया विच मनदे हाँ कि नज़ारा एक हुंदा है, नज़रिया अलग अलग हुंदा है, दृश्य एक हुंदा है, दृष्टिकोण अलग अलग हुंदा है। पर यह गल जरूर समझ लेना, बहुते मामलों में साडा दुनियादारां दा नज़रिया भी एक जैसा है, दृष्टिकोण भी एक जैसा है। जे अलग है तो सिर्फ गुरु नानक दा। इसलिए मौत आउंदी है ना, असीं बड़ा रोने हाँ, बड़ा घुलाउने हाँ, बड़ा दुखी होंदे हैं। हाय हाय, तबाही, बर्बादी, रोना पिटना। हालांकि मेरे सतगुरु बाणी च पता की आखदा है, महाराज कन्ने भोलिया मौत ते बिल्कुल ओहो जी गल है जिवें दिन तो बाद रात आ जाए, होर ते कख भी नहीं। दस भला दिन चढ़िया है, बड़ा सोहना लगता है, सारियां नूं ही बड़ा चंगा लगता है। दिन चढ़िया है, खास करके अजकल सर्दियों के दिनों में जिस वेले दिन चढ़ता है ना, दोपहर को वेले कोसी कोसी धुप बड़ी चंगी लगती है। तो मन लो बंदा निघी धुप माणदा बैठा होवे ते ये गल सोचना शुरू करे, रब्बा किते ना हुण रात ना पवे, बस ये दिन ही चढ़िया रहे, निघी धुप बनी रहे, सर्दी तो बड़े परेशान हो गए हैं। इहो जी सोच रखने वाला बंदा अनजान ही होगा। गुरु कहते कुदरत ने एक नियम बना दिता है, दिन ते सर पर पौसी रात, एवरी डे मस्ट बी चेंजिंग इनटू नाइट। हर हाल दिन ने रात में तब्दील होना ही होना है, जिन्ना मर्जी जोर ला, रोक लेगा। रात आ गई है, सारे जने रल के बैठे हैं, रात आ गई है, सारा परिवार इकट्ठा है, गल्लां बातां कर रहा है, बड़ा खुशी वाला माहौल है। तो कोई बंदा आखे रब्बा हुण कृपा करिए रात ये खुशी वाला माहौल कदे ना बीते, तो रुक जाएगा। सतगुरु आखदे ने बिल्कुल नहीं, दिन ते सर पर पौसी रात, रैन गई फिर होए प्रभात। रात ने चले जाना है, फिर प्रभात हो जानी है। रात ने चले जाना है, फिर दिन चढ़ जाना है। बिल्कुल इसी तरह जिंदगी ने खत्म हो जाना है, फिर मौत आ जानी है। मौत तो डरदा क्यों है? सच जानना, मैनू ना इस गलों बड़ी हैरानी होती है। अमरीका में रहन करके ना बड़ी बार मैनू इस गल का तजर्बा होया, बई दुनिया में हर किस्म के स्कूल ने, अमरीका में तो खास करके हर छोटी छोटी गल नूं करन तो पहला बाकायदा तुहानूं स्कूल लेना, कोर्स लेना, क्लासिस लैनियां जरूरी ने। हर काम लई स्कूल है, हर काम लई कोर्स है, हर काम लई क्लासां ने, जरूरी है। मैं वेखदा दुनिया में हर तरह के स्कूल ने, हर तरह के कोर्सेज ने, लखां तरह के स्कूल ते लखां तरह के स्कूलों दे भी अगां लखां लखां स्कूल। मसलन पढ़ाई के अनेकां कॉलेज ने, ज्ञान के अनेकां कॉलेज ने, पर जिंदगी का एक महत्वपूर्ण काम उसके बारे में कोई समझ नहीं। दुनिया में किसी बंदे ने कार भी चलानी सीखनी है, उत्थे स्कूल जाना जरूरी है भाई, ताकि तेन समझ हो भाई ये काम किवें करना है। हर काम लई समझना सीखना जरूरी है, ताकि मौका आ जाए ना तो ठीक तरह उस वेले नूं संभाल सके, ताकि बंदा जिंदगी में चलदियां कदे धोखा ना खावे। पर मैं तकदा जिंदगी का एक बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा मौत। कोई स्कूल नहीं दुनिया में जिथे किते सिखाया जाता होवे
मौत आ जाए ना तो उस वे तुसीं किवें एक्ट करना है, मौत आ जाए तो उस वे किवें इसका सामना करना है, कोई स्कूल नहीं है। तो सही पर अफसोस असीं सिख एडे अणजाण आ, गुरु नानक दे स्कूल विच मौत का सामना किवें करना है ये गल जरूर सिखाई जाती है, पर असीं अणजाण आ ना। रोज़ बाणी पढ़ी जा रहे हैं, गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह दी परिक्रमा करी जाने हैं, गेड़े कढ़ी जाने हैं, पर जो गुरु ने आख्या वो तो कख भी नहीं समझते, समझते ही कख नहीं। गुरु कहते ने मौत आ जाए उस वेले किवें करेगा। संबत साहा लिखिया मिलकर पावो तेल, देहो सज्जन असीसड़ियां ज्यों होवै साहिब स्यों मेल। चलो एक वार्ता याद आ रही है तुहाडे नाल साझी कर लवां। महाराज गुरु अमरदास साहब सच्चे पातशाह तीसरे सतगुरु जिस वेले ऐलान कर दिता ना मैं अपना शरीर त्याग देना है, वैसे ये गल भी बड़ी अनोखी है। अज दे बहुते सिख विद्वान गुरु नूं भी एक आम मनुख मनदे ने ते गुरु नूं एक आम मनुख बना के पेश करने का यतन करते हैं कि गुरु केवल एक आम मनुख सन। जे साडी श्रद्धा सिर्फ इन्नी को है ना गुरु ते गुस्ताखी लिखे मैं फिर कख भी नहीं किया। देखो गुरु आम मनुख नहीं सन, मेरे ख्याल में इन्नी उदाहरण ही काफ़ी रहेगी। गुरु नानक तो लैके गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज सच्चे पातशाह तक जदों भी शरीर त्यागना सी ना पहलों हुक्म कर दिता भाई मैं शरीर त्याग देना है, उस तो बाद ए गुरता गद्दी दे मालक होणगे। और ये घटना 10 बार वापरी है, एक बार नहीं 10 बार लगातार, वन आफ्टर दी अदर। गुरु नानक ने शरीर त्यागण तो पहलों ऐलान कर दिता मैं शरीर त्याग देना, मेरे तो बाद गुरता गद्दी दे मालक गुरु अंगद देव होणगे। जिम्मेवारी सौंप के गए ने, पता है मैं शरीर त्याग देना। यह गल गुरु अंगद देव महाराज ने की थी, यह गल गुरु अमरदास ने की थी। जदों गुरु अमरदास साहब सच्चे पातशाह ने ऐलान किया ना मैं शरीर त्याग देना है, तो कुदरती गल सी बई सिख संगतां इकट्ठियां हो गई तो उनदे विचों कुछ प्रेमी रोण लग पे। गुरु अमरदास ने पता की लिखा, जो कुछ गुरु अमरदास ने कहा सतगुरु की हजूरी में रहन वाले प्यारे सिख गुरु के रिश्तेदार भाई सुंदर साहब ने बाकायदा नोट कर दिता रामकली सद विच। रामकली सद भाई सुंदर साहब की रचना है। ते आखदे ने गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह ने ऐलान किया जेड़ा रोवेगा ना मैनू चंगा नहीं जे लगेगा। एक बार प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। कमाल हो गई, साडी दुनियादारां दी इच्छा है मैं जान लगा मैं मरन लगा मेरे रिश्तेदार रोण, जे रोंदे नहीं तो प्यार काहदा इन्हां नूं मेरे नाल। पर गुरु अमरदास आखदे ने मत मैं पिछे कोई रोवसी सो मैं मूल ना भाया। मेरे जान तो बाद कोई रोया जे ना जड़ा रोवेगा मैनू बिल्कुल चंगा नहीं लगेगा, मैनू बिल्कुल चंगा नहीं लगेगा। सिख कहन लगे महाराज सच्चे पातशाह तुहानू प्यार करदे आ फिर अखां विचों अथरू ते कुदरती गिर पैणगे ना। गुरु ने जो कुछ अगले बचन आखे बड़े अनोखे ने। सतगुरु कहन लगे एक गल दसो बई तुसी मैनू प्यार करदे हो मेरे मित्र हो इस लई रोवोगे? जे तुसी मेरे मित्र हो मैनू प्यार करदे हो इस लई रोना चाहुंदे हो फिर तुसी मित्रता का भाव बिल्कुल ही नहीं समझते। मैं जदों यह बोल पढ़ रहा सा ना रामकली सद दे मेरे मन में सुभावक एक ख्याल पैदा होया, शायद आप जी ने ख्याल होवे। अमरीका का एक महान विद्वान है जिसका नाम है डेल कार्नेगी। डेल कार्नेगी ने कुछ किताबां लिखियां जिस तो बड़ा प्रसिद्ध होया। सब तो पहली किताब सी उसकी
चिंता किवें छड्डीए ते सुख नाल किवें जीवीए, हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। उसका पंजाबी वर्शन सी चिंता छड्डो सुख नाल जीओ, बड़ा प्रसिद्ध होया। उसने एक दूसरी किताब लिखी हाउ टू मेक फ्रेंड्स, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ मिली। पर जिस वे मैं किताबां पढ़ रहा सा, सच जानना मैं बड़ा हैरान होया, सोच रहा सा कमाल हो गई है, सारा कुछ तो गुरु ने 500 साल पहला सानू गुरबाणी विच लिख के दे दिता। अफसोस असीं कदे पढ़िया ही नहीं, समझिया ही नहीं, जानिया ही नहीं। हुण साडी नज़र विच मित्र की परिभाषा की है? वैसे मित्रता दुनिया दीयां गल्लां, रिश्ते दीयां गल्लां, संबंध बनाने दीयां गल्लां, इसनूं दुनिया की भाषा विच सोशियालोजी आखदे ने। अफसोस असीं समझदे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ ने, असीं कदे समझे ही नहीं कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज विच सानूं सोशियालोजी भी सिखाई सी गुरु ने, समाज शास्त्र भी सिखाया। गुरु ग्रंथ साहिब विच स्पेस साइंस दीयां गल्लां भी ने, किसी वेले फिर विचारांगे। हुण असीं कहने मित्र पता की है, साडी सारियां दी परिभाषा, साडी सारियां दा नज़रिया यह है, मित्र वो जिहड़ा वेले सिर काम आवे। अ फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन डीड। बस यही है ना, मित्र वो जिहड़ा वेले सिर काम आवे। भगत फरीद आखदे ने बई यह वाली परिभाषा ते लोभ वाली परिभाषा हुई ना, ते जे लोभ होया तो फिर मित्रता कादी। मैं उदाहरण आपके सन्मुख रखदा। अज मेरा मित्र मेरे कोल आवे ते आके आखे बस हुणे 10 लाख रुपया दिओ, सच जानना मैं मनो उसकी मदद करनी चाहवां, पर मैं हाथ जोड़ के आखा मित्रा है नहीं मेरे पास इन्ने पैसे, ते अगला आखे तुसी मेरी मदद नहीं की, तुसी मित्र काहदे। मित्रता की परिभाषा है, जे मित्रता की परिभाषा यह है तो फिर झूठ है। गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह ने जेड़े बचन आखे वो मित्रता का आधार ने। गुरु कहने लगे मित पैज है, मित बिगस है, जिस मित की पैज भावे। आ मित्रता की परिभाषा है। मित्र वो है, उदाहरण वजह मेरे मित्र नूं सन्मान मिल रहा होवे ते मैं कोल रोण बह जावां, मैं चंगा लगांगा? मैं मित्र हाँ? मेरे मित्र नूं सन्मान मिल रहा है तो मैं रोंदा पिया नहीं, ये मित्रता ते ना होई। जब मेरे मित्र नूं दुख मिले है तो मैं कोल बह के हसदा पिया, ये मित्रता है? नहीं, मित्रता यह है जिस नाल मित्रता होवे, प्यार होवे ना, उसका दुख अपना दुख जानीदा है, उसका सुख अपना सुख जानीदा है। उसके दुख विच मैं दुखी होवां, उसके सुख विच मैं सुखी होवां। गुरु अमरदास महाराज कहने लगे भोले सिखो मेरे जान तो बाद रोयो ना, मैनू चंगे नहीं लगोगे। क्यों? क्योंकि तुसी मेरे मित्र हो। भला खुद सोचो ना, मैनू ए संसार विचों जान तो बाद रब्बी दरगाह ते सिरोपा मिलना है, रब्बी दरगाह ते सिरोपा मिलना है। मित पैज है, लफज पैज है, पहनाया जाना, पहनाया जाना, सिरोपा पहनाया जाना। गुरु कहने लगे तुसी मैनू मित्र जानदे हो ते तुहाडे मित्र सतगुरु नूं रब्बी दरगाह ते सिरोपा मिल रहा होवे ते तुसी रोण बह जाओ, तुसी विचार देखो पुत भाई हर सतगुरु पहनावे, तां ही तुसी मेरे मित्र होना जे उस वेले खुश होवो। जे रोण बह जाओगे तो मैनू चंगे नहीं लगोगे। मैं फिर दोहराना, गुरु जिक्र ते मौत दा कर रहे हैं। असी मौत नूं की समझिया है? असी मौत नूं की जाने? अफसोस असी दुनियादार मौत नूं तबाही, बर्बादी, रोना, कुरलाउणा, हाय हाय, कल्पना, पिटना ही समझने। नहीं, गुरु आखदे ने मौत ते रब दे हुक्म विच वापरन वाली एक कुदरती घटना है। इसनूं मित्रा उस तरह स्वीकार कर जिवें तू जन्म नूं स्वीकार करना है, जिवें खुशी नूं स्वीकार करना है, उसी तरह रहो। चलो एक बात याद आ गई,
श्री गुरु अर्जन देव महाराज पंजवें सतगुरु ਨੂੰ ਨਾ श्री ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ शायद आप जी ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਹੋਵੇ ਕੋਤਵਾਲੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਾਹਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਤੋਖ ਸਰ। ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਜੋਗੀ ਮਿਲਿਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। ਮਿਲਦਿਆਂ ਸਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸ਼ੰਕਾ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਉਸ ਦਿਨ ਸਮਝ ਆਈ योग साधनावां राही उम्र लंबी हो सकती है, शरीर दुरुस्त रह सकता है, पर आत्मा का विकास होवे नहीं। क्षमा कर देना। इसलिए जेड़े आखदे ने ना बई योग मत दा जां योग दा संबंध सिक्खी नाल है, हाँ सिर्फ शरीर तक है, इस तो अगे नहीं, सिर्फ शरीर तक है। योग आसन करन नाल शरीर राजी रह सकता है, उम्र वध सकती है, श्वासां ते कंट्रोल करना आ सकता है। अध्यात्मिक विकास हो गए नहीं, जरूरी नहीं। जोगी कहने लगा, महाराज जी मेरी सैकड़े साल उम्र है, मेरा एक भुलेखा दूर करो। सतगुरु कहने लगे, की भुलेखा है? कहने लगा, महाराज जी एक गल दसो भाई दुनिया सच है कि झूठ है? गुरु अर्जन देव महाराज कहने लगे, भुलेखा किथे है? कहने लगा, महाराज दसो बई जे ये दुनिया सच है तो जिन्ने धार्मिक पुरुष ने, जिन्ने अध्यात्मिक ज्ञानी ने, वो सारे आखते ने दुनिया झूठ है। गुरु नानक ने आख्या कूड़ राजा, कूड़ प्रजा, कूड़ सब संसार, कूड़ मंडप, कूड़ माड़ी, कूड़ बैसनहार। जे दुनिया सच है तो फिर सारे आत्मज्ञानी झूठ क्यों कहते हैं? तो कहने लगा, महाराज सच्चे पातशाह जे दुनिया झूठ है तो फिर ये सच दिसदी पई है, हुण दिसदी पई है अखां दे सामने, इसनूं झूठ किवें कहांगे? जरा ना मेरी ए उलझन दूर करो। श्री गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह ने उस वेले एक शब्द उच्चारण किया। गुरु कहने लगे, योगी राज ध्यान नाल समझो, बाजीगर जैसे बाजी पाई, नाना रूप भेख दिखलाई। बाजीगर लफज जरा हो सकता है सानू पुराने जमाने के लगन, मैं यत्न करदा इन्हों मॉडर्न ढंग नाल तुहाडे सामने रख सका। जिन्हों तुसी ड्रामा कहते हो ना, नाटक कहते हो, पुराने जमाने में इन्हूं बाजी कहते सन। ते नाटक खेडण वाले, बाजियां पाउण वाले बाजीगर। हुण नाटक दा जां ड्रामे दा होर अगला सुधरिया हुआ रूप है फिल्म, मूवी। की है बे ड्रामा खेडिया जा रहा है, उसकी फोटोग्राफी कर ली, वीडियोग्राफी कर ली तो फिल्म बन गई, मूवी। और तो कुछ भी नहीं, ड्रामा ही है ना, बाजी। गुरु कहने लगे, गल दसो, बाजीगर जैसे बाजी पाई, ड्रामा खेडिया जा रहा है, दिस वर्ल्ड इज ए स्टेज ऑफ ड्रामा, ड्रामा खेडिया जा रहा है, ते ड्रामे दे विच है ते आम जिहा बंदा, पर राजियां वाले कपड़े पा के सामने आया है। राजियां वांग उसने पग बन्नी है, ताज रखा है, ते जिस वेले आउंदा है ना, उस ड्रामे दे विच आले दुआले खड़े सारे जने उसका सत्कार करते हैं, झुक झुक के सलामा करते हैं, हुक्म मनते हैं। गुरु कहने लगे, भला दस बई उसका राजा होना सच है कि झूठ है? कहने लगा, महाराज झूठ। सतगुरु कहने लगे, फिर सच नजर क्यों आता है? सारे जने सलामा करते हैं, सारे जने हुक्म बन रहे हैं। कहने लगा, महाराज फिर सच होगा? सतगुरु आखन लगे, जे सच है तो कुछ छिन ठहर, जिसले इसने राजियां वाले कपड़े ला दिते ना, इसे नहीं भिखारियां वाले कपड़े पा लैने ने। हुण दस इसका राजा होना सच सी? सतगुरु आखन लगे, ये जगत एक तमाशा है, बाजीगर जैसे बाजी पाई, नाना रूप भेख दिखलाई, सांग उतार थम्यो पासारा, तब एको एकंकारा। सतगुरु कहने लगे, इस जगत विच रहिंदियां असां इस गल का ख्याल रखना है, ए दुनिया तो एक ड्रामा है। हुण पता है फर्क कित्थे आउंदा है? असीं ड्रामा वेखदे वेखदे ड्रामा हो जाने, असीं तमाशा वेखदे वेखदे तमाशा हो जाने।
पर सच जानना कोई गुरु गोबिंद सिंह वर्गा व्यक्ति होवे जिहड़ा तमाशा वेखदा है, तमाशा हुंदा नहीं। यह ही अंतर है। इसलिए ये बोल मैनू बड़े प्यारे लगते हैं। मैं हाँ परम पुरख को दासा देखण आयो जगत तमाशा। चलो ये उदाहरण मैं फिर तुहाडे सामने रखदा। असीं तमाशा हो जाने हैं। असीं ते टैलीविजन ते कोई इहो जिहा मार्मिक प्रोग्राम वेख रहा होइए ना, कोई करुणा रस भरिया प्रोग्राम वेख रहा होइए जिथे कोई रो रहा होवे ते सच गल है साडियां अखां विचों अथरू वगण लग पैंदे ने। असीं समझने हैं सच है, हालांकि जानते भी हाँ है तो झूठ, ड्रामा है, एक्टिंग है, और तो कख भी नहीं। ये लोग जेडे रोंदे पे ने ड्रामे दे विच, ये लोग जेडे रोण की एक्टिंग कर रहे हैं, सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं, इन्होंने कोई दुख नहीं, सिर्फ एक्टिंग। पर कमाल हो गई, असीं तो ड्रामा वेखदे वेखदे ड्रामा हो जाते हैं, तमाशा वेखदे वेखदे तमाशा हो जाते हैं। तमाशे में कोई हसन वाला सीन आ जाए तो असीं खिड़खिड़ा के हस पैने, हालांकि पता है बई आ लोग जेडे तमाशा करते पे ने इन्हां दा ते हसना भी झूठा है, इन्होंने तो हसन के भी पैसे मिलते हैं। गुस्ताखी लिखी पर तमाशा हो जाते हैं। कदे तुसीं सोचिया है महाराज गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह किस आत्मिक रंग विच होणगे? अपनियां अखां दे सामने अपने बच्चों को शहीद करवा लेना ते शहीद करवा के फिर अकाल पुरख वाहिगुरू दा शुक्र मनाउणा, बस यह ही सबूत है गुरु तमाशा हुंदे नहीं सन बल्कि तमाशा वेखदे सन। पर मैं फिर दोहराना, कमाल हो गई, पुत्रां दी मौत नूं तमाशा क्या जा सकता है? नहीं, बड़ा औखा है साडे लई। जोगी अल्लाह यार खान लिखते हैं, उस रात जिस रात दोवें साहिबजादे शहीद हो गए, 40 सिख शहीद हो गए, हुण रह गए ने केवल 5 गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज के नाम रह गए ने सिर्फ 5। इंतजार हो रही है। जोगी अल्लाह यार खान लिखते हैं, ठंड का वक्त सी, इन्नी ठंड, भुख दे मारे हुए, ठंड दे मारे हुए सारे सिख, इसलिए शरीर ढकण लई कोई गर्म कपड़ा भी मौजूद नहीं सी पास। इसलिए ना घोड़े उत्ते बैठण लग्या जिहड़ा कपड़ा पाया जाता है ना काठी उत्ते, जी पोश, बस ओहा ही खिचे होरे ते हेठां सुट के लम्मे पै गए। जोगी अल्लाह यार खान लिखते हैं, कुछ लेट गए खाक पे जी पोश बिछाकर। जी पोश घोड़े की काठी ते सुटन वाला कपड़ा। कुछ लेट गए खाक पे जी पोश बिछाकर, गोबिंद भी निसल हुए खेमा में जाकर। गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज सच्चे पातशाह भी ना कुछ देर लई जरा निसल होने लगे, कहने लगे जाकर देखा तो बैठे हैं गर्दन झुकाकर, ते करदे की पए ने, वाहेगुरु 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 है मुंह से निकलता है, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू मुंह से निकलता। कमाल हो गई। कुछ घंटे पहला ही तो अपने प्राण प्यारे सिखां की शहादत वेखी ने, कुछ घंटे पहला ही तो अपने प्यारे बच्चों की शहादत वेखी ने, पर रत्ती पर घबराहट नहीं, रत्ती पर मलाल नहीं चेहरे ते, रत्ती पर अफसोस नहीं, रत्ती पर गम नहीं। क्यों? क्योंकि जगत नूं तमाशा जानते हैं। जगत तमाशा है उन्होंने लिए। कहते ने छोटे साहिबजादियां नूं जिस वेले पेश किया गया ना सरहिंद की कचहरी विच, उस वेले का दृश्य किसी कवि ने बड़ा सोहना खिंचा है। छोटे साहिबजादे झुकते नहीं सन, इसलिए कचहरी विच पेश करन लग्या जान बुझ के वड्डा दरवाजा बंद करके छोटी बारी खुली रखी गई, बई जिस वेले अंदर वड़नगे उदों तो झुक के वड़नगे ना, इसे बहाने चुका लांगे।
पर कहते ने साहिबजादियां ने अंदर वड़न लग्या ना अपना सिर अंदर पहलों वाड़ के झुकण की बजाय अपना पैर पहलों अंदर रखा, जिसका भाव है सी ऐ नवाब असी तेरी नवाबी नूं जुत्ती की ठोकर ही समझते हैं, कुछ भी नहीं जानते। हुण कुदरती गल सी, इहो जिहियां गल्लां तो नवाब होर चिड़दा। एक शायर लिखदा है, कहंदा फेर कड़क के बोलिया सूबा खान वजीर, कलमा पढ़ो कुरान दा मौका दियां अखीर। कड़क के आखन लगा, ओए जे जिउणा जे मुसलमान बन जाओ वरना मार दियांगा। फिर कड़क के बोलिया सूबा खान वजीर, कलमा पढ़ो कुरान दा मौका दियां अखीर, वरना बोटी बोटी मास दी दियांगा नुचवा, जिंदा विच दीवार दे दियांगा चिणवा। साहिबजादे बोल दे सानू मरण अजीज, अजीज मैंने हुंदा प्यारा। साहिबजादे बोल दे सानू मरण अजीज, साडे लई ते मौत है खेडण वाली चीज। हे मेरे वाहिगुरू, कमाल हो गई। उम्र कितनी है? 7 साल ते 9 साल। दुनिया की नजर में मासूम बच्चे, पर गुरु नानक दे घर की एडी वड्डी सिक्ख्या उन्होंने अपने जीवन में धारण कर ली। मौत एक खेडण वाली चीज ही जापदी है, खिडौना ही जापदी है, तमाशा ही जापदी है, इस तो बातें कुछ भी नहीं। गुरु कृपा करे, जे सिक्खी एक जीवन जिउण का ढंग है ना, तो फिर सानू ये जीवन जिउण का ढंग आ जाए। जे सिक्खी वे ऑफ लिविंग है तो फिर असीं इस नूं जिउं के वेखीए। गल्ली बाती गल नहीं बनने वाली। हाँ, मेरे सतगुरु पातशाह आखदे ने, भाई जगत विच रहिंदिआं जे तैनूं ये याद रहे कि मौत आ जाण वाली है, मौत ने आ जाना है, फिर ना दुनिया दियां वाधू शैयां नाल तेरा मोह नहीं बनेगा। याद रख, हम आदमी हाँ एकदमी, मोहलत मोहत ना जाना। वी आर ह्यूमन बींग्स जस्ट फॉर वन ब्रेथ, सिर्फ एक श्वास, इस तो बातें कुछ भी नहीं। इसलिए महाराज सतगुरु गुरु नानक देव साहब सच्चे पातशाह फरमान करते हैं, नानक बिन वै तिसै सरे वो जान के जी पराना। महाराज कहते हैं, मैं दास नानक बेनती करदा हाँ। किसनूं बेनती करदा हाँ? कमाल हो गई। सानू सारियां नूं आखदे पए ने, मैं तुहानूं बेनती करदा। बड़ियार जाइए, जिन्ने निमरता वाले बोल गुरु नानक कोल लेना, दुनिया के किसी रहबर के पास नहीं सन। गुरु अर्जन देव महाराज भी इस तरह ही आखते हैं, करो बेनती सुनो मेरे मीता, संत टहल की बेड़ा। हुण वेला है, मेरे मित्रों ध्यान नाल सुनो, मैं तुहानूं बेनती कर रहा। नानक बिनवै, मैं दास नानक बेनती करदा हाँ, तिसै सिरे वाओ, उस वाहिगुरू नूं याद करो, जान के जी पराना, जिसने ए जीवन दिता है, जिसने ए जीव दिता है, आत्मा दी है, तो जिसने ए प्राण ने, उसनूं सिमरो, उसनूं याद करो। मन लैने आ दुनिया दे विच ना कुछ चीज़ां दे बारे विच असीं बड़ा डेफिनेट होंदे आ, बई हर हाल ये गल ते वापर ही जानी है, पर कुछ मामलों के बारे में ना असीं टोटली अनश्योर होंदे आ, बई पता नहीं ये गल होवे कि ना होवे। सतगुरु महाराज गुरु अर्जन देव आखदे ने, भाई मौत ने आ जाना है, ये गल ते उस तरह डेफिनेट है जिवें दिन तो बाद रात ने आना है। मौत ने आ जाना। हाँ, ये बात अलग, अज ज कल, कल ज परसों मेक्स नो डिफरेंस। महाराज गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह आखदे ने, दातार कहंदे ने, परो आज कै काल, जो उपजियो सो बिनस है
परो आज कै काल। परो डिग पवोगे भाव शरीर डिग पवेगा, भाव शरीर मर जाएगा, मौत आ जाएगी। जो उपजो सो बिनस है, परो आज कै काल। मे बी टुडे और टुमारो और द डे आफ्टर। मौत ने आ जाना, यह गल पक्की जान, डेफिनेट। पर ना कुछ मामलों के बारे में असी टोटली अनश्योर होने, पता नहीं होवे कि ना होवे। मसलन तुम एक गल कह सकते हो, अज इस वेले ठंडी हवा चल रही है, कल की पता इस वेले ठंडी हवा होवे कि ना होवे, पता नहीं होना कि नहीं होना। कल दोपहरे धुप बड़ी सोहनी लगी हुई सी, अज दोपहरे धुप होवे कि ना होवे, पता नहीं। सतगुरु आखदे ने, मित्रा दुनिया दीयां गल्लां दे बारे में जानदा फिरना, इन्नी समझ नहीं आई। हर जपदियां खिन ढिल ना की चाही, मेरी जिंदड़ी है मत के जप ऐसा आवे कि ना आवे राम। नोबडी नोस, कोई नहीं जानता, किसी को नहीं पता। जेड़े दावे करते ने झूठे ने। गुरु आखदे ने कोई नहीं पता जिंदगी रहे कि ना रहे, अगला श्वास आए कि ना आए, पता नहीं, पता नहीं। भाई साहब कवि संतोख सिंह जी होरां ने ना एक वार्ता बड़ी प्यारी लिखी, मैं तुहाडे नाल साझी कर लवां। कहंदे ने एक बार बीरबल, अकबर ते बीरबल दे किस्से तुसीं बड़े सुने होणगे। तेज दिमाग बंदा सी पर बड़ा मुतसबी, बड़ा रेसिस्ट, बड़ा फिरका परस्त। नाम उसका महेश दास सी, महेश दास बीरबल। ते महेश दास बीरबल अकबर के दरबार में सी। भाई साहब कवि संतोख सिंह जी लिखते हैं, एक बार ना फौजा लैके गोइंदवाड़ विखे गुरु अमरदास कोल चला गया, ते जाके कहने लगा, मैनू अकबर ने हुक्म किया बई सारे खतरियां दे कोलों टैक्स लैके तू आना है। ते कहने लगा, महाराज तुसी खतरी हो, इसलिए तुहाडे कोलों टैक्स लैण मैं आया। गुरु कहने लगे, दो गल्लां ठीक कर। पहली गल, गुरु की कोई जात नहीं, जिवें रोशनी की चानण की कोई जात नहीं, इस तरह गुरु ज्ञान स्वरूप है, गुरु की कोई जात नहीं। ना मैं खतरी हाँ, ना मैं ब्राह्मण, मैं ते सिर्फ अकाल पुरख वाहिगुरू की जोत हाँ। दूसरा, गुरु घर कोई बिजनेस नहीं, ये कोई कारोबार जो व्यापार थोड़ा है बई व्यापार में सानू लाभ हो रहा तो तैनू टैक्स दईए। हाँ, गुरु घर ते सेवा का स्थान है, लंगर चल रहा है, सारी संगत आके लंगर छकदी है। जे तेरा भी जी करे तो फौजा समेत आके तू भी छक जा, पर जे तू आखे टैक्स मिले, ये नहीं हो सकता। कहते ने उसने फिर सुनेहा भेजा, जे तुसी टैक्स ना ना दिता तो मैनू फिर सख्ती करनी पवेगी। सतगुरु मुस्कुरा पे ते कहने लगे, ये घर अकाल पुरख वाहिगुरू दा, गुरु नानक दा, जिहड़ा इहदे ते सख्ती करन दी नीयत रखेगा, गुरु आपे उहदे नाल निबड़ लएगा। कहते ने कुदरती रात वेले सुनेहा आ गया, काबुल वाल बगावत हो गई है, तो महेश चंद बीरबल नूं सुनेहा मिलिया, तू फौजा लैके उस बगावत नूं दबाउण लई जा। रात नूं जांदा होया सुनेहा दे गया, मैं चलिया बगावत दबाउण, मुहिम ते चलिया, वापस आवांगा ना तुहाडे कोलों टैक्स जरूर लवांगा, भावें हमला करके ना लेना पवे। गुरु अमरदास मुस्कुराए ते कहने लगे, आवेंगा तो टैक्स लवेंगा ना। भाई साहब कवि संतोख सिंह जी लिखते हैं, गया जरूर मुहिम ते, पर उस मुहिम दे विच ही मारिया गया, वापस आ ही नहीं सकिया। भोला दावे बड़े करदा है, मैं आ कर देंगा, मैं आओ कर देंगा, ये नहीं जानता अगला श्वास आना भी है कि नहीं आना। व्यर्थ दे झूठे दावे, बेकार। इसलिए सतगुरु आखदे ने, नानक बिन वै तिसै सरेवो। भाई मित्रों,
ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਮ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਾਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਡਰਨ ਦੀ, ਰੋਣ ਦੀ, ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਲੋੜ ਹੈ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਦੀ। ਸਮਾਂ ਮੁੱਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇ ਯਾਦ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਆਖਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਬਿਨਵੈ ਤਿਸੈ ਸਰੇਵੋ ਜਾਂ ਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣਾ। ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨੇ। ਅੰਧੇ ਜੀਵ ਨਾ ਵਿਚਾਰ। ਵਾਹ, ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੀ ਨੇ? ਹੈ ਐ ਅੰਨੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ। ਜੀਵਨਾ ਵਿਚਾਰ। ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਦੇਖ ਕੇਤੇ ਕੇ ਦਿਨਾਂ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਆਖਦੇ ਪਏ ਨੇ ਮੌਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਕਰ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਬੇਕਾਰ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਬੇਕਾਰ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਬਈ ਮੌਤ ਆਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਮੌਤ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਬੇਕਾਰ ਜਾਏਗਾ। ਅੰਧੇ ਜੀਵਨਾ ਵਿਚਾਰ ਦੇਖ ਕੇਤੇ ਕੇ ਦਿਨਾ ਰਹਾਓ। ਸਾਸ ਮਾਸ ਸਭ ਜੀਓ ਤੁਮਾਰਾ, ਤੂੰ ਮੈਂ ਖਰਾ ਪਿਆਰਾ। ਵਾਹ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖਦੇ ਨੇ ਐ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸਵਾਸ ਵੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਸ ਤੇਰੇ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ, ਐ ਸਰੀਰ ਤੇਰਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਇਰ ਏਮ ਕਹਿਤ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਰਵਰਦਗਾਰਾ। ਐ ਸੱਚੇ ਪਰਵਰਦਗਾਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਵੀ, ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਦੇਹੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਕਿਆ ਕੋ ਕੱਢੈ ਗਹਿਣਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਕੀ ਨਾ ਦੇਵੇ? ਜੇ ਆਪ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਜੇ ਆਪ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿਮਰਨ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਜੇ ਆਪ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲਵੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸਦੇ ਪਾਸ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖੇ? ਭਾਵ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲਵੇ। ਨਾਨਕ ਬਿਨਵੈ ਸੋ ਕਿਛ ਪਾਈਐ, ਪੁਰਬ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲੈਣਾ। ਭਾਵ ਰੱਬੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਟਾਂਦਰੇ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹਾਂ, ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਖਸਮ ਕਾ ਚਿਤ ਨਾ ਕੀਆ, ਕਪਟੀ ਕਪਟ ਕਮਾਣਾ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਇਸ ਕਪਟੀ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਪਟ ਤੇ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਦੀਆਂ ਤਰਕੀਬਾਂ ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਮ ਦੁਆਰ ਜਾਂ ਪਕੜ ਚਲਾਇਆ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਪਛਤਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਜਮਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਛਤਾਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜਬ ਲਗ ਦੁਨੀਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਨਕ, ਕਿਛ ਸੁਣੀਐ ਕਿਛ ਕਹੀਐ। ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਉਚਾਰਨ ਤੇ ਅਰਥ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਜੀ ਕਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਆਖਦਾ ਵੇਖ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਕਿਛ ਸੁਣੀਏ ਕਿਛ ਕਹੀਏ, ਆਹ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰੀਏ। ਇਹ ਤੇ ਭਾਵ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮਿੱਤਰਾ,
ਕੁਝ ਆਖ। ਕੀ ਆਖ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਆਖ। ਕੁਝ ਸੁਣ। ਕੀ ਸੁਣ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਗੱਪਾਂ ਤੇ ਬਥੇਰੀਆਂ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੁਣਦਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਿੰਦਾ ਤੇ ਬਥੇਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਬ ਲਗ ਦੁਨੀਆ ਰਹੀਐ ਨਾਨਕ, ਕਿਛ ਸੁਣੀਐ ਕਿਛ ਕਹੀਐ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਭਾਈ, ਕੁਝ ਸੁਣੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਕੁਝ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਭਾਲ ਰਹੇ ਹਮ ਰਹਿਣ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਕੋਨਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਬੰਦਾ ਸਦਾ ਲਈ ਰਹਿ ਸਕੇ, ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਕੋਨਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮੌਤ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਵ ਹਰ ਹਾਲ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਹਰ ਹਾਲ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਲੱਭਦਾ ਰਿਹਾ, ਜੀਵਨ ਕਦੇ ਸਦੀਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਮਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਜੀਵਤਿਆਂ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵੀਏ ਜਿਵੇਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੌਤ ਆ ਹੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਉਚਾਰਨ ਵਿਚਾਰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਭਾਵ ਕੀ ਸੀ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵੀਏ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਬਸ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ? ਸੱਚ ਗੱਲ ਜੇ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਖਿਆਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੋ। ਭਾਲ ਰਹੇ ਹਮ ਰਹਿਣ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਜੀਵਤਿਆਂ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਮੌਤ ਕੋਈ ਡਰਨ ਵਾਲੀ, ਕੁਰਲਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਬਰਬਾਦੀ ਵਾਲੀ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਵਾਲੀ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਮੌਤ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਮੌਤ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇ। ਜੇ ਨਾਮ ਜਪ ਲਈਏ, ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕੀਏ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਇਤਨੇ ਬਚਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਪਾਸੋਂ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਯਤਨ ਕਰਨਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ, ਸਹਿਯੋਗ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਰਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਪਿਆਰ ਸਤਿ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,